کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر کے باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا تمہاری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطس کی حکومت نے دکھ اٹھایا مصلوب ہوا مر گیا دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر پاک عالم کی کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین. تشریف رکھیں. ہالیلویا. خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے آج پچھلی بار جو ہم نے سیکھا تھا خروج کی کتاب سے آج اسی کا میں نے کہا تھا یہ دو حصوں میں نے تقسیم کیا ہے. آج اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل قوم نے ایک گناہ کیا جو خدا کو پسند نہیں تھا. خدا نے حکموں میں اس کا ذکر کیا تھا کہ تم کسی تراشی ہوئی مورت کی کو سجدہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس کے آگے سجدہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ وہ خدا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کے لایا ہے. وہ بھول گئے تھے سارا کچھ. آئیں اسی سے آگے بڑھتے ادھر. 11 ایسے اب چھوڑا تھا لیکن 10 ایسے اب شروع کریں گے اس کو دوبارہ سے تاکہ تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ کہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. 10 ایسے اب پڑھیں گے خروج کی کتاب 32 باب اور اس کی 10 ایسے پڑھنا شروع کریں گے. اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بسط کروں. 10 میں خداوند غصہ کرتا ہے اور پہاڑ پر ہی موسیٰ کو کہتا ہے تو مجھے اب چھوڑ دے تاکہ میرا غضب جو ہے ان پر کیا کرے بھڑکے اور میں ان کو مار دوں ختم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. پڑھے ذرا. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. میں تجھے بڑی قوم بناؤں. موسیٰ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا. وہ کہتا ٹھیک ہے سب کو مار دے مجھے ایک اور قوم بنا دے. خدا بنا سکتا تھا. خدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم موسیٰ کی محبت دیکھتے ہیں کہ موسیٰ محبت رکھتا ہے لیکن وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے 11 کو جب پڑھتے تو دیکھیں کیسی خوبصورت آیت ہے یہ. تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا. کیا کی منت کر کے کہا. گناہ بڑا تھا لیکن پھر بھی موسیٰ جو ہے وہ خداوند کے آگے منت کرتا ہے اور کہتا ہے پڑھے ذرا کیا کہتا ہے کہ اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے. کیوں تیرا غضب بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. جن کو تو دست قوی سے اپنے ہاتھ سے اپنی قوت سے تو ان کو نکال کے لے کے آیا ہے. اب تو کیوں ان پر بھڑکتا ہے. کیوں تیرا غضب ان پر بھڑکے گا. ہاں جی. مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو مصری لوگ کیوں یہ کہنے پائیں کہ تو ان کو اسی لیے لے کے آیا تھا تاکہ پہاڑوں میں جا کے مار ڈالے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو بنانے جائیں کسی کے لیے تو ہم کوئی پرانی بات یاد کرواتے ہیں. نہیں اگر تو ایسا نہیں کریں گا تو لوگ کی کہتے ہیں نا. آپ بھی کئی بار آپ بھی کہتے ہیں وہ لوگ کی جیسے چلے میں پاسٹروں پہ لے آتا ہوں. کالی کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے مجھے کہا جی فلاں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تو آپ نہیں بولے. میں کہا میں پاسٹر ہوں.
اس لیے میں بول نہیں سکتا کیونکہ وہ زیادتی کریں گے. اگر میں تھوڑی سی بھی کوئی بات کروں گا تو کہیں گے جی یہ پاسٹر دیکھیں کیا کرتا ہے. یہی بات یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. موسیٰ خدا کو یاد کرواتا ہے کہ مصری لوگ یہ کہیں گے کہ تو بڑی طاقت سے تو ان کو لے گیا, اب جا کے تو نے کیا کہ پہاڑوں میں ان کو مار دیا, تو اسی نے لے کے گیا تھا. وہ اس کو یاد دلواتا ہے اور خدا فوری طور پہ مان جاتا ہے. پڑھیں ذرا. مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے. سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہے اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے. تو اپنے بندوں ابراہیم اور اب خدا آپ کو پھر وعدہ یاد کرواتا ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا اپنے بندہ ابراہیم سے, اپنے بندہ اسحاق سے, یعقوب سے, تو نے یہ سارا وعدہ کیا ہے کہ اسی قوم کو میں ساری سرزمین دے دوں گا. وعدہ یاد کرواتا ہے تاکہ خدا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے غضب سے باز آ جائے. خدا ان کو نہ مارے کیونکہ خدا بت پرستی کی سزا بہت بڑی دیتا ہے. میں اکثر آپ کو بتاتا جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں پھر خدا ان کو جلدی معاف نہیں کرتا. میں اکثر لوگوں کو روز بیٹھ کے دعا کرے اور خدا سے کہے خدا ہمیں معاف کر. یہ خدا کی مرضی کہ خدا کا معاف کرے گا کیونکہ خدا بت پرستی کو پسند نہیں کرتا. لیکن آج ہم بڑی شان و شوکت سے بت پرستی کرتے ہیں. ہم تراشی ہوئی مورتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا اور یہ ہمیں بچالے گا. لیکن خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا ذکر کر کے موسیٰ جو ہے خدا کو وعدہ یاد کرواتا ہے. جی پڑھے ذرا. تو اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جسے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل قسم بھی یاد کرواتا ہے کہ تو نے قسم کھائی تھی. اب میں تجھے یاد کرواتا کہ تو نے قسم کھائی تھی تو کس طریقے سے ان کو مارنے لگا دیا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس ملک میں رہے, اس کے مالک رہے. تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا. تب خداوند نے اس برائی کو یعنی کہ اس غصے کو جو ان کو مارنا چاہتا تھا اس سزا کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. برائی کا مطلب ہے سزا. خدا سزا دینا چاہتا تھا لیکن خدا کیا کرتا ہے, اس سزا دینے سے باز آتا ہے. لیکن خدا باز نہیں آتا. خدا کیا کرتا ہے, پڑھے ذرا کے. جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا اور موسیٰ شہادت کی دونوں روحیں ہاتھ میں لیے ہوئے, وہ شہادت ہوئے اس پر 10 حکم لکھے گئے تھے. موسیٰ ان کو لے کے واپس آتا ہے اور جب لے کے واپس آ رہا تھا یہ تراشی ہوئی مورت جو لوہے تھی, جو تختیاں تھی, خدا نے اپنے ہاتھوں سے تراش کی تھی اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی کیا تھا, لکھا تھا. یہاں بائبل مقدس میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ خدا کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے. 10 حکم جو ہیں یہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں. جس طرح انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, باقی ساری چیزوں کو خدا کہتا جا رہا تھا اور سارا کچھ بنتا جا رہا تھا, لیکن واحد انسان تھا جس کو خدا نے اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا, پیدا کیا اور پھر اپنا روح جو ہے اس کے اندر ڈال دیا اور پھر انسان جیتی. اسی لیے انسان کی سب چیزوں سے زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح 10 حکموں کی بھی سب سے زیادہ بائبل مقدس میں ہم اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حکموں کو مانیں, اس کے حکموں سے دائیں بائیں نہ پھریں. لیکن ہم دائیں بائیں پھرتے ہی رہتے ہیں. اور پھر جب وہ نیچے آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے, جی پڑھیں. اور پہاڑ سے نیچے اترا اور وہ لوہیں ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی. جی. اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی. وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی. خدا نے ان کو بنایا تھا اور خدا نے کیا آگے پڑھے, اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا. جو لکھا ہوا تھا وہ جو لکھا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی چیز آپ لکھ دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ اس لکھے ہوئے سے ہٹ نہیں سکتے. زبانی کلامی دعا خدا نے حکم جو پہلے دے دیے تھے, زبانی دے دیے تھے,
कि मूसा सारे बनी इसराइल कौम को ये हुक्म सुना दे। जब सुना दिए गए, लेकिन बाद में खुदा ने मुनासिब जाना और उनको लिख के दिया, और वो आज तक लिखे हुए पड़े हुए हैं। वो तख्तियां जो रहत के संदूक पे पड़ी हुई हैं, जब रहत का संदूक खोला जाएगा तो उसके अंदर से ये 10 हुक्मों की तख्तियां जो है वो भी बाहर निकलेगी। आज हम देखते हैं कि खुदा लिख देता है, और आज भी अगर कोई भी केस हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो कहते हैं जी आपके पास कुछ लिखा हुआ है, किसी के सिग्नेचर है, किसी ने आपको लिख के दिया है, अगर लिख के दिया तो लेके आए, वरना आप खामोश हो जाए। खुदा इसीलिए 10 हुक्मों को लिखता है ताकि लोगों को पता हो कि मैंने ये 10 हुक्म तुम्हें दिए हैं। जागे और उन पर हुक्म किया हुआ था। और जब यीशु ने खुदा लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। क्योंकि यशवा को पता नहीं था, क्योंकि वो तो रास्ते में था, लेकिन मूसा को हर चीज खुदा ने बता दी थी कि नीचे क्या हुआ है, नीचे जा। नीचे उन्होंने एक बछड़ा भी बना लिया है, उन्होंने उसको खुदा भी तस्लीम कर लिया है, वो उसकी इबादत कर रहे हैं। वो तो कहते कि ये ही खुदा है जो हमें मुल्के मिस्र से निकाल के लेके आया है, और तू नीचे जा। लेकिन यशवा रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए यशवा जब उसको मिलता है तो उसको कहता है कि लगता है कि नीचे क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि शोर शराबा था, क्योंकि वो ईद मना रहे थे। उस देवता की जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था उसकी ईद मना रहे थे, और उसके आगे डांस कर रहे थे, नाच रंग कर रहे थे, खाने खा रहे थे। लेकिन खुदा को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। और फिर आगे मूसा क्या कहता है जी, पढ़े। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतह मंदों का नारा है, ना मखलूकों की फरियाद, बल्कि मौजूद और गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। हाँ जी। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथों से उसने क्या किया, मूसा का गजब अब भड़कता है, और वो गुस्से में दोनों लोहे जो खुदा ने बनाई थी, जो खुदा ने लिखी थी, वो क्या की, तोड़ दी, नीचे फेंक दी, तोड़ दी। और इसकी भी सजा मूसा को मिली। जब दोबारा लेने जाएगा तो फिर देखेंगे कि खुदा ने कहा, वो मूसा तू इनको तैयार कर, लिखूंगा मैं, लेकिन जो तूने तख्तियां तोड़ी हैं उसी शक्ल की तू तख्तियां बना। फिर मूसा को वो मेहनत करनी पड़ी, पहले खुदा ने कर दी थी, पहले खुदा ने बनाई, लेकिन मूसा ने गुस्से में आके क्या की, तख्तियां तोड़ दी। और फिर आगे बढ़े जी, और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। हाँ जी। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया, और उसे बारीक पीस कर पानी का छिड़का, और उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया। उसी में से बनी इसराइल को क्या किया, पिलाया। ये इस चीज की निशानी थी कि करवाहट जो है, गुनाह की करवाहट, वो किसी वक्त भी आपके अंदर दाखिल हो सकती है। इसलिए मूसा उसको जलाता है और फिर उसको पानी के ऊपर फेंकता है, और वही पानी सारी बनी इसराइल को कहता कि पियो, ये तुम्हारा गुनाह है, तुम दोबारा से क्या हो गए हो, गुनाह में फंस गए हो। ये वैसी है जैसे कड़वी दवाई जो है, कभी हमें कोई बीमार हो जाए और वो ठीक भी हो जाए, और दोबारा फिर वो कोई गलती करे, वही बीमारी अटैक करे, तो फिर दोबारा वही दवाई अगर कड़वी पीनी पड़े तो फिर कहते बड़ी कौड़ी सी मैं पहला ही पीता रहे। यही हाल है कि यहाँ पे बनी इसराइल कौम ने गुनाह किया था, और गुनाहों से निकल के दोबारा गुनाह किया, तो मूसा ने उनको इसीलिए वो पानी पिलाया ताकि तुम्हें याद हो कि तुम दोबारा से बछड़ा बना के उसकी पूजा करते फिरते हो। जागे। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था। मूसा ने हारून से पूछा कि हारून तूने क्यों किया, तू लोगों ने क्या तेरे साथ ज्यादती कर दी थी कि तूने इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। हालांकि पिछले बार आपने पिछली आयतों में पढ़ा है कि वो उसने बड़ी आज से जैसे ही उन्होंने कहा हाँ मैं बना देना, वैसे ही। और यहाँ पे वो झूठ बोलता है, क्या कहता है, जिन्होंने इन लोगों को इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हाँ जी। हारून ने कहा, मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तो इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। हाँ जी। चुनांचे इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने उनसे कहा कि जिसके हाथ सोना हो वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल पड़ा। क्या जी? काजी बिछड़ा खुद ही बछड़ा निकल आया।
मैंने आग में डाला और बछड़ा खुद ही बन गया, मैंने नहीं तैयार किया। हालांकि लिखा है कि उसने छेनी से उसकी शक्ल भी तैयार की, उसको तराशा, उसको तराश के बनाया, लेकिन मूसा के आगे झूठ बोल रहा है। कहता कि नहीं, मैंने तो वो डाल दिया और खुद ही बछड़ा गया है, तैयार हो गया, एक देवता तैयार हो गया और मैंने इनको देवता दे दिया। पढ़े जरा आगे। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर छोड़ा था। खुदा का बंदा मूसा जब जाता था तो सारी कमान जो थी वो कौन करता था? हारून के अंदर था सारा कुछ, लेकिन हारून बड़ी आज़िज़ से ये सारे काम करके दे देता है। इसलिए हारून जो है उनको बेलगाम छोड़ देता है और बनी इसराइल कौम जो है वो गलत काम कर बैठते हैं। आगे पढ़ें। हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया। तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजा पर खड़े होकर कहा, जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। और क्या हुआ? पढ़े जरा। तब सब बनी लावी उसके पास, तब सारे बनी लावी, इसलिए लावियों को कहानत मिली थी, उन्होंने यहाँ पे दलेरी की। मूसा ने, जैसे मैं हरियाणा गांव में जब हम काम कर रहे थे तो जब हमने घर से इबादत खत्म करनी थी तो मैंने कहा कि जो मेरे साथ हैं, जो चाहते हैं कि इबादत हो वो मेरी दाईं साइड पे आ जाए, तो पूरा गांव मेरे साथ आके खड़ा हो गया था। लेकिन चंद लोग थे जो वो दूसरी साइड पे खड़े थे, दूसरे साइड। यहाँ पर भी जो मूसा है वो यही बात कहता है कि जो लोग मेरे साथ है वो क्या करें? मेरे पास आ जाए। और बड़ी लावी कबीला के जो लोग थे वो सारे के सारे मूसा के साथ खड़े हो जाते कि हम तेरे साथ है। इसलिए खुदा ने उनको पसंद किया और उनको कहानत के लिए मुकर्रर कर दिया। और लावी जो हैं अब तक कहन बनते हैं, और अब जब अहद का संदूक खोला जाएगा तो बनी लावी के कबीला से बंदे आएंगे और उन्हीं को तैयार किया जाएगा और वो आके अहद के संदूक को खोल सकते, वरना कोई अहद का संदूक खोल नहीं सकता। जागे। और उसने उनसे कहा कि खुदा इस्राएल का खुदा जो फरमाता है कि तुम अपनी रान से तलवार लटकाकर फाटक फाटक घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। क्या करो? कत्ल। फिर ये खुदा की तरफ से गजब था। मूसा ने कहा कि जो लोग इस बात से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं ऐसी बुत परस्ती नहीं छड़नी। बनी लावी को हुक्म दिया गया कि तुम अपनी तलवार लो और जगह जगह घूमो और जहां जहां ये लोग मिले इन सबको उठाए, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारी बहनें हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, आस पड़ोस के लोग हो, जो भी होगा उन सबको क्या कर दो? कत्ल कर दो। क्योंकि इन्होंने खुदा की बेहुरमती की है, इन्होंने खुदा को छोड़ के बछड़े की पूजा की है और अब भी ये ऐसे ही कहते हैं, इसलिए तुम इन्हें क्या कर दो? मार दो। और क्या हुआ? पढ़े जरा। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। चुनांचे उस दिन लोगों में से तकरीबन 3000 मर्द खींच आए। 3000 मर्द जो खेत आए मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। फिर जब रूहुल कुदस का नज़ूल होता है तो उसी दिन कितनी जमात उनके साथ मिल गई थी? 3000। ये खुदा ने दोबारा से उसमें शामिल किया था उन लोगों को। खुदा ने 3000 लोग यहाँ पे मरवा दिए और फिर वहां पे हम देखते हैं कि उसी दिन 3000 लोग जो हैं वो उस जमात में शामिल हो जाते। ये रूहुल कुदस की बरकत थी। जागे। और मूसा ने कहा कि आज खुदावंद के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदावंद के पास ऊपर जाता हूं। मैं दोबारा खुदावंद के पास ऊपर जाता हूं, मैं वापस जाता हूं, शायद खुदा माफ कर दे। पढ़े जरा। शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। अब कितना बड़ा कफारा देने लगा ये मूसा। पढ़े जरा क्या कफारा दिया। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया। कहा, हाय खुदावंद इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। खुदावंद इन्होंने वाकई बहुत बड़ा गुनाह किया है, इन्होंने बुत परस्ती की है, इन्होंने वो हुक्म तोड़ दिया जो तूने इनको लिख के दिया था। तो खुदावंद इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन अब क्या कर तू? पढ़ दे जरा। कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। हाँ जी। और अब अगर तू इनका गुनाह माफ ना करे तो इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम इस किताब में से जो तूने लिखी ये है है कुर्बानी।
उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उसने कहा अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो ठीक है, नहीं तो मेरा नाम भी उस किताब से क्या कर दे, खत्म कर दे। किताबे हियात में से मेरा नाम क्या कर दे, खत्म कर दे। मैं नहीं वो नाम लेना चाहता अगर तूने इनको माफ नहीं करना। और ये बहुत बड़ी एक दलेरी की बात है। जैसे कोई आपका कोई बंदा ऐसा हो जिसकी आपने जमानत दे, तो आप कहें जी मैं तैयार हूं जी, इसके लिए मैं दूंगा जी जमानत। ये ही हाल था कि वो कहता है कि अगर खुदावन तूने इनको मारा, अगर तू इन पर गजब अपना नाजिल करेगा तो मेरा नाम क्या कर दे, उस किताब में से निकाल दे जो तूने लिखी हुई है। पढ़े आगे जरा। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है, जिसने मेरा गुनाह किया। गुनाह किसने किया था? हारून ने सबसे बड़ा गुनाह किया था। पढ़े जरा। और मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। मैं उन सब का नाम जिन जिन लोगों ने पूजा की है, जो बुत परस्ती करते हैं, क्या ख्याल है जो आज भी लोग बुत परस्ती करते हैं उनके नाम किताब हियात में से मिल जाएंगे? नामुमकिन सी बात है। यहाँ खुदा क्लियर कर देता है कि मैं उनका नाम, चाहे बड़े ईमानदार हो, खुदा के साथ ठीक चलते, उनका नाम लिखा भी हो, लेकिन जब कोई ऐसा गुनाह करेंगे तो उनका नाम किताब हियात से खारिज कर दिया जाएगा। लिखा है कि मैं उन्हीं का नाम खत्म करूंगा जिन्होंने ये बड़ा गुनाह किया है। जागे। अब तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। हाँ जी। देख मेरा फरिश्ता तेरी आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबा के दिन उनको उनके गुनाह की सजा दूंगा। मैं उनको उनके गुनाह की सजा जरूर दूंगा, मैं हटने वाला नहीं हूँ। हाँ जी आगे। और खुदावंद ने उन लोगों में मरी भेजी। खुदा ने उन लोगों में मरी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया उन्हीं का बनवाया हुआ था। जो हारून ने बछड़ा बनाया था वो उन्हीं का बनवाया हुआ था। हारून के लिए भी खुदा ने सजा की थी। खुदा ने कहा कि इसका नाम भी मैं किताबे हियात से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। लेकिन मूसा की वजह से खुदा ने उसको माफ कर दिया था। पढ़े जरा इस्तिश्ना 9 बाब और उसकी 19 और 20 है, 204 नंबर पेज है। इस्तिश्ना की किताब 9 बाब 19 और 20 है, तो पढ़ दे। 204 नंबर पेज है। और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा। क्या जी? खुदा हारून से ऐसा गुस्से में था, खुदा इतना बड़ा नाराज था उससे कि वो हारून को क्या करना चाहता था, हलाक करना चाहता, मारना चाहता था। और मूसा को पता था कि खुदा ने हारून को क्या कर देना है, मार देना है, क्योंकि इसने उस बुत को बनाया है, इसने वो बछड़ा बनाया है। आज सोच ले जो लोग बुत बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। खुदा उनसे नाराज है क्योंकि वो बनाते हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, वो तो अपने काम करते हैं, लेकिन खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। लिखा है कि उसी ने ये बछड़ा बनाया था, इसलिए खुदा उसको मारना चाहता था। जी पढ़े आगे। पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की। लेकिन मैंने, मूसा कहता उस वक्त मैंने उसके लिए, हारून के लिए क्या की, दुआ की। हाँ जी। और मैंने तुम्हारे गुनाह को यानी उस बछड़े को जो तुमने बनाया था लेकर आग में जलाया। हाँ जी। मैं उसे कूट कूट कर ऐसा पीसा कि वो गर्द की मारे बारीक हो गया और उसकी राख को उस नदी में जो पहाड़ से निकल कर नीचे बहती थी डाल दिया। हाँ जी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्लियर होता है कि मूसा अगर खुदा से शिकायत ना करता तो यकीनन हारून को भी खुदा मार देता, क्योंकि उसने ये सबसे बड़ा गुनाह हारून का था। ना तो उसने बनी इस्राएल कौम को मना किया, बल्कि मना करने की बजाय उनको वाकई बछड़ा बना के दे दिया और कतान गांव भी बना दी और कहा कि तुम इसकी पूजा करो। आज जो लोग ऐसी दावतें देते हैं ना लोगों को बुत परस्ती के लिए, जब लोग ठीक चल रहे होते, नहीं तेरे बच्चा नहीं हो रहा, तू बाबे को चले जा, तू यहाँ पे चली जा, वहां पे चले जा, वो लोग सजा के ज्यादा हकदार है, उनको ज्यादा सजा मिलेगी। और जो लोग बुत परस्ती करते हैं, लिखा है उन सब के नाम मैं क्या कर दूंगा, उस किताब में से खत्म कर दूंगा। आज जरूरत है कि हम खुदा को देखें, खुदा के हुक्मों को मानते हुए अपनी जिंदगी बसर करें, ताकि हमारे नाम अगर किताब हियात में लिखे हैं तो वो बरकरार रहे, नहीं तो किसी वक्त भी किताब हियात से नाम निकाले जा सकते हैं। आए खुदा इस्लाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करें। दुआ में बच प्रवीण करें।